Dear students, in the last class, all of us studied the fourth poem of our book Flamingo, A Thing of Beauty. I narrated that poem. I hope that you would have understood the poem properly. Today we are going to understand and solve its question answer. Many of you asked me, sir, are you going to give us some Hindi translations of these question answers? Actually, my little friends, it is not convenient now. It is little bit difficult, since I have been preparing some different questions this year, and the notes which I am going to provide you is little bit different from the answer. So obviously there will be some confusion in your mind. So to prevent those confusions, I am trying my level best to make you understand the Hindi meaning of all the question answers orally, so that you can understand it properly. Now you have an option. You have to listen to me. You have to see me. You have to observe me through my video. And as I always tell you, that English is not that difficult that you cannot understand whatever I am teaching you. This is very easy. You have puzzled your mind. You have made English very difficult. It sounds through your comments that it has become an uphill task for you. This is not so. Take it easy. When I teach you, when you watch my video, listen to me, try to understand whatever I tell you, and try to ask me if any problem arises. Without any further delay, I would like to start your question answer section. Today's lecture is very small and very interesting both. Let us try to understand. As all of you know, that 4 or 5 lines will be given from any of the poems of your book. 2 or 3 questions will be based on those 4 or 5 lines, and you will be asked to write those answers, and that is called extraction. जैसा पीछे के बाकी तीनों कविताओं में मैंने एक्सट्रैक्शन आपको बताई है. एक्सट्रैक्शन होता है किसी कविता का 2-4 लाइन दे दिया जाएगा और उस पर आधारित 1-2-3 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको उसका जवाब देना है. तो आज हमने ए थिंग ऑफ ब्यूटी का एक्सट्रैक्शन लिया है. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. जैसा पिछले लेक्चर में आपने सुना भी है, इसके मीनिंग को एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि सुंदरता की वस्तु ऐसी होती है जिसकी खुशी कभी खत्म नहीं होती. वो कभी शून्य में नहीं जाती, उसकी खुशी बढ़ती ही जाती है. मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको सावधान किया था, आज भी कर रहा हूं. सुंदरता की वस्तु का मतलब फिजिकल थिंग्स नहीं, कार नहीं, एसी नहीं, या लोगों की सुंदरता नहीं, प्राकृतिक सुंदरता. उसकी जो खुशी होती है वो कभी खत्म नहीं होती, वो बढ़ती ही रहती है. But we keep a bar quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing.
आपने कीवर्ड्स में, हार्ड वर्ड्स में लिखा था, बौर मतलब होती है पेड़ों की छाया। यहां पर उस छाया का मतलब है मन का सुकून, मन की शांति। तो जब हम प्रकृति के बीच में रहते हैं, ये हमें सुकून देता है, अच्छी नींद देता है, अच्छा स्वास्थ्य देता है, अच्छे सपने देता है, यानी हमारी जिंदगी को खुशियों से भर देता है। The more you are in touch of the mother nature, the happier you become. आप जितना प्रकृति के संपर्क में रहते हो, उतना ही ज्यादा आप खुश होते हो। खुशी की अगर कोई पैमाना हो तो विश्वास मानिए, शहर के लोगों से ज्यादा खुशहाल गांव के लोग हैं। सुविधाओं के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंफर्ट्स एंड हैप्पीनेस, बोथ आर डिफरेंट। सुविधाएं शहर में ज्यादा है, खुशियां गांव में ज्यादा है, क्योंकि गांव के लोग किसके बीच में रहते हैं? प्रकृति के बीच। इसी 4-5 लाइन पर आधारित 2 क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोगों को समझना है। क्या? हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर? आपसे पूछा गया है कि सुंदरता की वस्तु हमेशा की खुशी कैसे है, ये बताइए। आप क्या बता रहे हो? अकॉर्डिंग टू जॉन किट्स, आप सबको पता है जॉन किट्स इसके कवि का नाम। अकॉर्डिंग टू जॉन किट्स, ब्यूटी इज इमॉर्टल। अकॉर्डिंग टू का मतलब तो आप जानते हो, के अनुसार, जॉन किट्स के अनुसार सुंदरता इमॉर्टल है। इमॉर्टल मतलब अमर, जो कभी मरती नहीं। इट इंक्रीजेस विद द पासिंग टाइम, यह समय के साथ क्या होती जाती है? बढ़ती जाती, इंक्रीज होती, बढ़ती ही जाती है। All the beautiful things have the ability to give us immense pleasure. All the beautiful things, सारी सुंदर चीजों में have the ability, क्षमता है। ability की हिंदी क्या होती है? क्षमता। यानी सारी सुंदर चीजों में क्षमता है to give us immense pleasure। मैं बता दूं, immense मतलब होता है काफी, बहुत ज्यादा। pleasure मतलब खुशियां। तो जितनी सुंदर चीजें हैं, सब में एक क्षमता होती है जो हमें भरपूर खुशियां दे सकती हैं। इसलिए सुंदरता की वस्तु कभी भी 1 मिनट की नहीं, 1 घंटे की नहीं, 2 दिनों की नहीं, हमेशा की खुशी कहलाती है। अगला है, हाउ डू ब्यूटीफुल थिंग्स हेल्प अस टू लिव ए हैप्पी लाइफ? सुंदर चीजें हमें एक खुशहाल जिंदगी जीने में कैसे मदद करती हैं? देखते हैं क्या जवाब है। A human life is full of ups and downs, sorrow, pain, disappointment, etc. Human life यानी मनुष्य की जिंदगी भरी हुई है किससे? ups and downs, उतार चढ़ाव, कभी खुशी कभी गम, कभी धूप कभी छाया। तो मनुष्य की जिंदगी उतार चढ़ाव, गम, दर्द, निराशा से भरी हुई है। ब्यूटीफुल थिंग्स have the ability, सुंदर चीजों में एबिलिटी होती है यानी क्षमता होती है, टू रिमूव दीज निगेटिव थिंग्स। रिमूव मतलब क्या होता है? हटाना, दूर कर देना। सुंदर चीजों में इन ऋणात्मक चीजों को हटा देने की, यानी दुख को, दर्द को, चिंता, परेशानी, निराशाओं को हटा देने की क्या होती है? क्षमता होती है। फ्रॉम अवर लाइफ एंड टू मेक आवर लाइफ प्लेजेंट। प्लेजेंट मतलब आनंददायक होता है। यानी सुंदर चीजों में ये क्षमता होती है कि हमारे आसपास की निगेटिविटी को, ऋणात्मकता को वो दूर कर देती है और हमारी जिंदगी को आनंद से भर देती है। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में देखते हैं। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। आपसे कहा गया है कि कविता में जिन जिन सुंदर वस्तुओं की चर्चा की गई है उसका नाम लिखो। तो क्या क्या? John Keats has called the sun, the moon, old and young trees, daffodils, stream of forest in the forest, stream of water in the forest, musk rose, etc. ये इन सब चीजों को, यानी सूरज को, चांद को, बूढ़े जवान पेड़ों को, नरगिस के फूल को, फॉरेस्ट में जो स्ट्रीम्स हैं यानी छोटे छोटे झरने हैं उनको,
मस्क रोज जंगली जो गुलाब होता है उसका जो बेहतरीन गंध देता है, इन सब को सम ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स, इन सब को सुंदर चीजों में से गिना है। और दुनिया में बहुत सारी सुंदर चीजें हैं, लेकिन इस कविता में इन चीजों की प्रखर रूप से चर्चा की गई है। अगला क्या है? What does the line therefore on every morrow are we reading a flowery band to bind us to earth suggest? यानी इस लाइन का मतलब क्या है कि हम लोग हर सुबह क्या करते हैं? फूलों की माला बुनते हैं। तो क्यों बुनते हैं वो बताइए, क्यों ऐसा कवि ने कहा? दिस लाइन सजेस्ट, यह लाइन बताती है कि द ह्यूमन बींग्स आर द लवर ऑफ ब्यूटी। यह लाइन बताती है कि मनुष्य सुंदरता का पुजारी होता है, प्रेमी होता है। ब्यूटीफुल थिंग्स अट्रैक्ट देम। जितनी सुंदर चीजें होती हैं मनुष्यों को क्या करती है? अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं। देयरफॉर दे ऑलवेज लुक फॉर का मतलब आप जानते हो, फ्रेज है तलाश करना, खोजना। यही कारण है कि दे ऑलवेज लुक फॉर ब्यूटी इन एवरी पार्ट ऑफ नेचर। यही कारण है कि मनुष्य प्रकृति के हर हिस्से में किसकी तलाश करता है? सुंदरता की। हर हिस्से में सुंदरता की तलाश करता है। मिट्टी में सुंदरता, फूलों में सुंदरता, फलों में सुंदरता, छोटे मोटे भेड़ों में सुंदरता, सब में जो है सुंदरता वो देखता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स? इतनी परेशानी, इतने कष्टों के बावजूद भी मनुष्य जीवन से प्यार करता है, ऐसा क्यों? क्वेश्चन आपसे किया गया कि ऐसा क्या है जो कि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं, इन कठिनाइयों के बावजूद भी मनुष्य अपनी जीवन से प्यार करता है। वो दुनिया से जाना नहीं चाहता, वो चाहता है भगवान उसे शतायु बनाए, दीर्घायु बनाए। तो देखते क्या है, ब्यूटीफुल थिंग्स मेक ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ। सुंदर सुंदर चीजें जो है वही मनुष्यों को क्या करने के लिए मजबूर करते हैं? प्रेम करने के लिए। किसको प्रेम करने के? अपनी जिंदगी को। इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, लाख कष्टों, लाख परेशानियों के बावजूद भी मनुष्य अपने जीवन से प्यार करता है, क्योंकि प्रकृति में जो मौजूद सुंदरता है, उसके आसपास जो मौजूद सुंदरता है, इस पृथ्वी को रहने लायक स्थान बनाती है। लोग इसी वजह से इस पृथ्वी को जल्दी छोड़ना नहीं चाहते। दे एवापोरेट अवर पेन एंड सॉरो। एवापोरेट मतलब वाष्पीकृत करना, नहीं, दूर कर देना। यही सुंदर चीजें हमारे पेन को यानी दर्द को और दुख को क्या करती है? खत्म करती है। एंड फील अवर लाइफ विद प्लेजर। फील मतलब भरना। यह सुंदर चीजें हमारे जीवन से दुखों को, दर्दों को दूर करती हैं और हमारी जिंदगी को खुशियों से भर देती है। That's all my little friends. I hope that you would have understood all the question answers, and as I always tell you that you do not have to copy me, you do not have to imitate me. What you have to do, you have to learn my art of writing. You have to produce your own way to write the answers so that it can be fruitful in your examination as well. Suppose that if I teach you something, if you start rugging those things, if you start remembering those things, and if any of the lines you miss in the examination, you will be confused, you will be less confident, and you may not do better in examination. So, try to cultivate an art to write the answers in your own way. So, what I always insist is that you have to learn only one thing, how my sir is teaching us. What are those things which he has tried to make us understand? You have to understand only all these things. Apart from that, please do not rag, ratta mat mariye,
सीखिए कैसे। तो जो मैंने 5-6 क्वेश्चंस लिखाए हैं उसको आपने समझा, अब थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में उसको लिख करके कोशिश कीजिए प्रैक्टिस करने की। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।